Hello everyone and welcome to my channel Speak Smart. Today we are going to learn about past perfect continuous tense. I hope before that you learned and understand what is simple past, past perfect and past continuous. So here we go with the lesson past perfect continuous tense. So what is this tense implies? This tense implies that this is nothing but a combination of perfect and continuous tense. Perfect means action is completed and continuous means action is going on. So it is very much clear that we are talking about two types of actions, two type of events in this type of tense. Okay, so the sentence formation structure for past perfect continuous tense is subject with head plus been plus verb first form with ing, and here you know with the head we are using all subject. All subject we can use he, she, it, I, we, you, they, any name we can also use Ram, Sia, Raman, like that. So here positive sentence subject plus had plus been plus verb first form with ing. Negative we have to add not word with our verb head. Then question form, so we replace the position of subject and verb. Here is the usage when we use the past perfect continuous tense. So as I already told you कि we are using this action for two things. One action is perfect and another action is continuous. So the action is started in the past and keep on going, right, up to some time, and in between the some other action is completed. तो इसमें हम इन सच उन actions की बात करते हैं जो past में start हुआ है और किसी टाइम के पहले वो कंटिन्यू भी है, चल रहा है वो, बट हम इसमें ऐसी एक्शन को भी ऐड करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक एक्शन कंप्लीट होने से पहले दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। वैसे भी एक्शंस के बारे में बात करते हैं हम, इसमें हम या तो किसी टाइम को लेके, क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम टाइम एक्सप्रेशन का भी यूज करते हैं, राइट। जैसे कि देख रहे हैं फर्स्ट टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड, जो पहले ही शुरू हो चुका है और कंटिन्यू भी है कुछ समय के लिए, राइट। जैसे कि द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉसर फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो यहाँ पर दो एक्शंस आपको दिख रहे हैं, द बॉय हैड बीन प्लेइंग सॉसर फॉर अबाउट एन आवर, एक घंटे से खेल रहे हैं, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश ऑलरेडी चालू हो गई है लेकिन वो खेल चुके हैं एक घंटे तक। टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, आपको किसी एक्सप्रेशन के बारे में बात करना है, किसी ड्यूरेशन के बारे में बात करना है, टाइम आपको यूज करना है इसमें, तो आप ऐसे कर सकते हैं रिचार्ड नीडेड अ हॉलीडे बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 मंथ। उसको अभी ज़रूरत है छुट्टी लेने की। क्यों ज़रूरत है छुट्टी लेने की? क्योंकि वो बहुत 6 महीने से वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, किसी का भी कारण, किसी भी एक्शन का कारण देने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। Okay, so here you can see the past perfect continuous tense with different subject. As I already told you that we can use any subject with the past perfect continuous tense. I, you, he, she, it, we, they. Right? I had been cycling. I hadn't been cycling. Had I been cycling? Had I not been cycling? Like that we are making. And here in negative question form, you can keep in mind that you have to put subject in between had and not, like had I not, had you not, had he not, had she not, had it not, had we not, had they not, like this. So here duration, as I told you कि in this past perfect continuous tense duration is must, ड्यूरेशन इज मस्ट। सो लाइक कितनी देर के लिए वो एक्शन चला था, कितनी देर के लिए वो एक्शन हुआ था, वो हमें मेंशन करना पड़ेगा इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे हम, शी हैड बीन स्टार्टिंग फॉर 3 आवर्स बिफोर डिनर, खाना खाने से पहले 3 घंटे के लिए वो पढ़ चुकी थी, 3 घंटे वो पढ़ चुकी थी डिनर लेने से पहले, राइट। तो यहाँ पर आपको लेंथ पता चल रहा है कि 3 घंटे हमने बताया है, राइट, जो कि किस एक्शन के पहले हुआ है, डिनर लेने के पहले। एक स्पेसिफिक मोमेंट हमने यहाँ मेंशन किया है कि बिफोर डिनर वो 3 घंटे से पढ़ चुकी थी। यहाँ पर हम जो है ड्यूरेशन में हम कॉमन वर्ड जो यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो होता है फॉर एंड सिंस, राइट।
तो दे हैड बीन प्लेइंग सॉसर फॉर 2 hours बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। ये एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं कि वो 2 घंटे से खेल चुका था जब बारिश चालू हुई तो, राइट। यहाँ पर और भी हम टाइम एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, जैसे कि कुछ इंटरप्टेड एक्शन है, कुछ रुके हुए एक्शंस हैं, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे। तो रुके हुए एक्शंस में हम जैसे व्हेन का यूज करेंगे, बाय द टाइम का यूज करेंगे, ऐसे वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्जाम्पल, दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। बारिश आ चुकी थी लेकिन वो अभी भी इंतजार कर रहे थे बस के लिए, फॉर द बस। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। वो बुक पढ़ चुका था जब फोन की घंटी बजी, राइट। व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बज रहा था तो वो क्या कर रहा था, वो बुक को पढ़ चुका था। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। ना इसमें हम कुछ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम रीजन देने के लिए भी इसमें यूज करते हैं कुछ वर्ड्स का, जैसे कि बिकॉज हो गया, सो हो गया, इस तरह के वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका था, बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑल द डे, क्योंकि वो दिन भर काम कर चुका था इसीलिए वो थक चुका था, राइट। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था, बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग विदाउट अ ब्रेक, क्योंकि वो विदाउट ब्रेक काम कर चुका था कंटिन्यू, राइट, इसीलिए वो भूखा था। Now here is the very short video for you to understand the past perfect tense, past perfect continuous tense. So here I said it is a combination of perfect and continuous tense both, and sometimes we are talking about two actions with the duration of time, right? और ऐसी एक्शंस के बारे में हम कर रहे हैं बात जिसमें कि वो स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कीप ऑन गोइंग, कंटिन्यू फॉर सम टाइम, एंड हियर वी कैन यूज हैड बीन वर्ड in the sentence formation structure. And with the had been, we can use any subject, I, you, we, they, he, she. Plural subject also you can use, singular subject you can also use, any subject. I had been teaching you for the last 1 hour. I had been teaching, मैं उन्हें पढ़ा चुकी थी 1 घंटे से, for the last 1 hour, 1 घंटे से उन्हें पढ़ा चुकी थी। तो यहाँ पर आई हैड बीन वर्ब का हम आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, और ड्यूरेशन हमने जो मेंशन किया है वो यूज किया है फॉरवर्ड के साथ, फॉर द लास्ट 1 hour, 1 घंटे के लिए से मैं उन्हें पढ़ा चुकी थी। तो ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं फॉर के लिए, तो वहाँ 2 years 4 days 7 minutes, राइट। यहाँ पर आपको 2 year अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको पता नहीं चल रहा है कौन से 2 साल। अगर मैं 4 दिन की बात कर रही हूँ तो नहीं पता चल रहा है आपको कि कौन से 4 दिन, 7 मिनट, कौन से 7 मिनट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, राइट। लेकिन जब हम सिंस के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सुबह से, 1998 से, या मई से, इस तरह से हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो जैसे कि शी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, 2 सालों से वो इंग्लिश पढ़ चुकी थी। वी हैड बीन हैविंग फन सिंस मॉर्निंग, सुबह से हम मस्ती कर रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 1999, 99 से वो ऑस्ट्रेलिया में रहे थे। शी हैड बीन वर्किंग फॉर लास्ट 4 hours, 4 घंटे से वो काम कर रही थी। आई हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से नहीं दौड़ रही थी। सो हियर नॉट वर्ड का हमने यूज किया है, नेगेटिव सेंटेंस है ये, हम हैड नॉट का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आप इसकी जगह हैडेंट का भी यूज कर सकते हैं। आप हैडेंट बीन भी लिख सकते हैं या हैड नॉट बीन भी लिख सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है। दे हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जून, जून से वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे थे। वी हैड नॉट बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से हम स्विमिंग नहीं कर रहे थे। शी हैडंट बीन फीलिंग हैप्पी फॉर 20 minutes, 20 मिनट से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वी हैडंट बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2012, 2020 से हम लंदन में नहीं रह रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि हमने हैड नॉट बीन का यूज किया है। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है या क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, तो हम रिप्लेस करेंगे पोजीशन, सब्जेक्ट एंड वर्ब की, और यहाँ वर्ब क्या है, हैड हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा शी है, राइट। तो हैड शी बीन डूइंग द डिशेस फॉर द लास्ट 45 मिनट, और यहाँ पर हैड का मतलब क्या है, क्या वो डिशेस कर धो रही थी 45 मिनट से, इसका ये मतलब है, राइट। हैड ही बीन राइडिंग अ बाइक सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से गाड़ी चला रहा था।
हैड शी बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2015, क्या वो 2015 से इस ऑफिस में काम कर रही थी? हैड दे बीन डिगिंग दिस ग्रेव फॉर द लास्ट 2 आवर्स, क्या वो इसमें खुदाई कर रहे थे 2 घंटे से? वी हैड बीन जोकिंग विथ यू सिंस मॉर्निंग, क्या वो जोक कर रहे थे सुबह से? तो हैड बीन के बीच में हमने सब्जेक्ट लगाया है एंड लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन फॉर्म। ओके, क्वेश्चन फॉर्म है तो क्वेश्चन मार्क आना कंपलसरी है। सो हियर वी आर completing with past perfect continuous tense. I hope you understand it, so keep on going. Thank you for watching my channel.